हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा ओड। कई सारे बच्चों को स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहता है कि ओड का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। तो मैंने थोड़ा ट्राई किया है कि जितना ज़्यादा इसमें समझ में आ पाए कि आपको अगर लिखना है उसके बारे में तो आपको नोट्स भी मिल जाएं, और अगर आपको समझना है तो आप ये रीड करके भी समझ सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। एन ओड इज एन काइंड ऑफ पोम यूजली प्रेजिंग समथिंग, मतलब किसी की तारीफ करने वाली जो पोम लिखते हैं उसको ओड बोला जाता है। द वर्ड ode comes from a Greek word for song, and like a song, an ode is made up of verses and can have a complex meter. An ode is a short lyric poem that praises an individual, an idea, or an event. In ancient Greece, odes were originally accompanied by music. In fact, the word ode comes from the Greek word eidin, which means to sing or to chant. तो ओड का आपको इतना मीनिंग समझ में आ गया। तो देख लेते हैं इसके कैरेक्टराइजेशंस क्या होते हैं या फीचर्स क्या होते हैं। देर आर मैनी कैरेक्टराइजेशंस ऑफ ओड विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ लिरिक्स। तो पहला है कि द ऑथर एड्रेसेस अ पर्सन और थिंग इन हिज ओड। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। इट इज़ यूजली एन इनडिस्पेंसिबल क्वालिटी ऑफ एन ओड। वेन एवर वी गो थ्रू एन ओड वी फील दैट poet is having conversation with somebody or maybe something. But way of example, in Ode to Nightingale, John Keats is addressing the nightingale. In Ode on a Grecian urn, the poet is speaking to a Grecian urn. Hence, this unique quality distinguish it from other types of lyrical poetry. तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट है, another fundamental characteristics of an ode is its solemn and serious tone. Each and every ode is extremely serious poem. There is absolutely no room for humor or pity and frivolous things. मतलब इसमें ह्यूमर मजाक या कुछ भद्दी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। ये जिस चीज़ के बारे में लिखा जाता है काफ़ी सीरियस होकर उस पर लिखा जाता है। It is highly serious and solemn in its tone. Look at the odes of John Keats. Every ode of John Keats is an epitome of solemnity in this regard. It doesn't have any element of frivolity. Next देखते हैं। In terms of style, the ode possesses an exceptionally sublime and great style. मतलब beauty या excellence. Every ode is composed in an exceedingly grand style. No ode in the history of English poetry, could possibly be traced out which is not elevated in its style. Every single poet endeavor had to compose his ode in extra elevated style. मतलब अगर आप कोई भी ओड हिस्ट्री में उठा के देख लेंगे तो आपको एक भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। मतलब एक ओड लिखने के लिए जो एक स्टाइल होता है वो उसमें बिल्कुल देखा जाता है। लाइक उसमें ह्यूमर जैसी या बेकार की चीज़ें फालतू की चीज़ें नहीं डालते उसमें। तो इसमें ज़्यादातर सब एग्जाम्पल आपको जॉन कीट्स के ही मिलेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी ओड्स लिखते थे, मतलब वो उसमें माहिर थे। मतलब इसलिए आपको जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे उनमें सबसे पहले नाम हमारा जॉन कीट का आता है। Another important feature of an ode is the fact that its theme is highly elevated. Its theme is definitely exalted, sublime, and elevated. Its theme bears wide-ranging significance. It may not be limited simply to the personality of the poet. Rather, it is यूनिवर्सल। तो एक चीज़ पर नहीं होता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ों पर होता है। Emotions is yet another essential characteristics of an ode. The poet wishes to give vent to his emotion through his plight of imagination in his ode. मतलब इमोशन के साथ आप कोई भी ओड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें इमोशन है। He really wants to leave the real world and take shelter in the world of his imagination. Thus, catharsis of emotion is an exclusive feature of an ode. Uniform metrical scheme is a silent feature of an ode. Poets really need to follow a constant metrical scheme. Stanza in the ode has a hard and fast rhyming scheme, which the poet pursue from start to an end of the ode. It must be kept in mind that the irregular ode doesn't follow these rules. उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ ओड में क्या आता है। पहला है पिंडारिक ओड। Pindar, who was the greatest lyrical poet of the Greece, has been considered to be the father of Pindaric or Choric ode. Pindaric odes are also referred to as the Choric ode, for the reason that in Greek plays
The chorus had to speak out the words of the ode with the accompaniment of music. It has a fixed stanza structure. However, the number of stanza may vary. It is broken down into three parts: strophe, antistrophe, and epot. उसके बाद आता है Horatian ode. The Horatian ode has been named after the Latin poet Horace, who wrote in the manner of Pindaric ode. It is persistent to mention here that Horace didn't follow the traditions of Pindaric ode as laid by Pindar. तो जैसे पिंडार लिखते थे उसका वैसा नहीं लिखते थे, इसलिए ये अलग ओड बन गई ही. He made several modifications in the structure of the ode and gave it his own personal touch. इसलिए जो होराशियन स्टाइल में लिखते हैं हम उसको होराशियन ओड बोलते हैं, और जो पिंडार के स्टाइल में लिखते हैं ओड उसको हम पिंडारिक ओड बोलते हैं. The Horatian ode comprised of many stanza with irregular metrical structure. An essential characteristic of Horatian ode is that it has not been split up into trades like Pindaric ode. The poet's main purpose is to give vent to his feeling in Horatian ode, unlike the Pindaric ode, where his element of objectivity runs through the whole structure of ode. उसके बाद थर्ड होती टाइप की वो है इरेगुलर ओड. तो इरेगुलर में मतलब कुछ भी वो जो लिखते हैं हम वैसा नहीं होता है, मतलब दोनों होराशियन और पिंडारिक कोड में जैसे लिखा जाता है उसका उससे कंपैरिजन नहीं होता, इसलिए इनको इरेगुलर ओड्स बोला जाता है. An ode is a poetic form that been described as a song or poem written in praise or celebration of an object, a place or an experience. तो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ चाहिए, आप किसी ह्यूमन के ऊपर या किसी जगह के ऊपर भी आप अपनी ओड लिख सकते हैं, मतलब उसको प्रेज करने का, उसको सेलिब्रेट करने का. इट इज़ पॉजिटिव, यूजली एक्सब्रेंट पीस ऑफ वर्क दैट टुडे नीड टू बी रिटन इन मीटर और राइम. तो अब वो मीटर राइम में लिखा जाता है, बट पहले ऐसा नहीं था. दो पोइट में चूज टू यूज दीज डिवाइसेस इफ विशेस. It is highly solemn and serious in its tones and subject matter and usually is used with elaborate patterns of stanza. However, the tone is often formal. A silent feature of ode is in uniform metrical feet, but poets generally do not strictly follow this rule, though use highly elevated themes. तो वो लिखने से ज़्यादा थीम्स के ऊपर, किस चीज़ पर लिखना उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे. अब ओड लिखने का मेन पर्पस क्या होता है? इज़ टू मेमोरलाइज एंड सेलिब्रेट समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू और सिग्निफिकेंस. जो आपको लगता है कि ये आपके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ओड लिख सकते हैं. अगर हम मॉडर्न ओड की बात करें तो उस पर राइमिंग होती है, ऑल दो इट दैट इज एन हार्ड रूल. ऐसा नहीं है कि लिखना ही है. एंड आर रिटर्न विथ इरेगुलर मीटर. ईच स्टेंजा हैज 10 लाइन एंड एन ओड इज यूजली रिटर्न बिटवीन 3 and 5 स्टेंजा. तो जिसमें 3 या 5 स्टेंजा मैक्सिमम होंगे उसको हम ओड बोल सकते हैं. तो मैंने 3 टाइप्स की ओड आपको बताई दी है: पिंडारिक, होराशियन एंड इरेगुलर. Ode is formal, often ceremonious lyrical poem that glorify an individual event or a concept. अगर हम एलर्जी की बात करें तो एलर्जी इज अ पोम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिकली लैमेंट फॉर द डेथ. तो एलेगी की बात करें तो एलेगी के सिर्फ ओड से इतना डिफरेंस है कि ओड हम खुशी में लिखते हैं और एलेगी का मतलब ही होता है दुख में या किसी के मरने पर लिखना. तो ओड्स आर यूजली लॉन्गर देन एलेगीज. तो अगर हम थोड़ा सा एलिगी के बारे में देख लें कि उसमें क्या डिफरेंस है, तो इट उसके क्या फीचर्स हैं या क्या अलग है वो. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ लिरिकल एंड फोकस ऑन एक्सप्रेसिंग इमोशंस और थॉट. इट यूज फॉर्मल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर. इट मे mourn द पासिंग ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी और समवन डियर टू द स्पीकर. इट मे एक्सप्लोर क्वेश्चन अबाउट नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ और इमोरलिटी ऑफ सोल. इट मे एक्सप्रेस द स्पीकर्स एंगर अबाउट डेथ. तो अगर आप देखेंगे इसमें डार्क themes ही होती हैं generally. An elegy is a poem that reflect upon death or loss. Traditionally, it contains themes of mourning, loss, and reflection. However, it can also explore theme of redemption and consolation. तो elegy की definition अगर हम देखें तो definition में होता है कि it's a form of literature that can be defined as a poem or song in a form of elegy couplets written in honor of someone deceased. आपका कोई गुजर गया हो उसके ऊपर जो पोम लिखी जाती है. इट टिपिकली लैमेंट और mourn the death of the individual. Elegy is derived from the Greek word elegus, which means a song or bereavement sung along with the fluid.
अगर हम इसके एलिमेंट देख लें कि इसको किस हिसाब से लिखा जाता है, तो इसके 3 स्टेजेस बोला जाता है लिखने के, या जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अ लैमेंट वेयर द स्पीकर एक्सप्रेस ग्रीफ एंड सॉरो, तो पहले आपको समझ में आ जाएगा कि वो दुख प्रकट कर रहा है। प्रेज एंड एडमिरेशन ऑफ आइडलाइज डेथ, जो मर चुका है उसकी तारीफ करता है फिर वो। फाइनली कंसोलेशन एंड सोलेंस, द डेथ वन इज नॉट डेड बट लाइव इन अनदर वर्ल्ड, फिर उसको कंसोल अपने आप को करता है, बताता है कि नहीं भाई वो कहीं पर भी हैं, वो खुश हैं, वो कहीं तो जिंदा है, किसी दूसरी दुनिया में है। इन सब चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि वो एक एलिगी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस पोइट की बात करें कि वॉल्ट विटमैन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ अमेरिका, व्हेन लिलैक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम इज वन ऑफ हिज most famous work. It was written after the assassination of Abraham Lincoln in 1865. तो अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें कि एलिगी कहाँ से हुई, तो हम वॉल्ट विटमैन का नाम सबसे पहले लेते हैं। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो समझ में आई हो ओड के बारे में और एलिगी के बारे में। थैंक यू सो मच।